उससे दूर रखते जब हम काम पे जाते हैं, क्या हमारी वो वाली जिंदगी जो है यीशु को जलाल देती है? जब हम सड़क पे चलते हैं, क्या हमारी वो वाली जिंदगी हम live a life that is very very transparent and in communion with God? आप उसको प्यार करोगे, यीशु को प्यार करोगे more than anything. अगर आप उसको सबसे ज्यादा प्यार करोगे तो आपको God is going to show you if you pay the price, and God will heal you and He will meet all your needs. हर एक चीज को मिलाएगा। Yes, Master. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां मेरी, कि यीशु की बहार हमारी जिंदगी में आई और अनगिनत खूबसूरत कलियां खिली। We thank you, Lord. जिंदगी मेरी बदल गई। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। Thank you, Master, for that moment when you touched us. Thank you for the transformation, oh Lord God. Thank you that you're still working on us, oh Lord God. True Prabhuji. Touch us, Master. Make us whole and teach us how to worship in spirit and in truth. 예수 जिसे तू छुए छुए खुदा तू ही इब्तिदा तू ही इंतहा जिसे तू छुए छुए खुदा तू ही इब्तिदा तू ही इंतहा यीशु तू
Please touch us. यीशु छूता जा जरा यीशु छूता जा जरा Lord, this morning I need your touch. Lord, all those people, they need your touch today. छूता जा जरा यीशु Thank you, Father. छूता जा Thank you, Jesus. यीशु छूता जा जरा God is touching you even though right now you are sitting in your home far, far away, but you are not far from Jesus. आप यीशु से दूर नहीं हैं, क्योंकि यीशु आज आपको छू रहा है. यीशु Hallelujah. Thank you, Jesus. छूता जा जरा यीशु छूता जा जरा छूता जा छूता जा Thank you, Father. Lord, thank you for your love and blessings, my Lord. Lord, thanks for your touch. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, for your touch. जब प्रभु यीशु हमें छूता है तो हमारी सारी generations to come ठीक हो जाती है. Thank you. यीशु तू ही तो है खुदा Thank you, Jesus. यीशु छूता जा Thank you, my Lord. Just worship Him. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We love you, worship you. Thank you. He's touching us. He's touching me personally, and He's touching you also. There, wherever you are maybe sitting in your bedroom or in your dining room, or just you are maybe driving or sitting next to the driver, and God is touching you right now. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, for your blessings. Even though you are on a bed, you cannot wake up or you cannot get up from the bed because you are sick, because Jesus Christ, He is touching you right now, and I pray and you get up from the bed in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you.
जब उसका रूह छूता है जिस आदमी में सारी बीमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं उसके छूने से बड़े बड़े रास्ते खुल जाते हैं Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, we love you, worship you, Abba Father, give you glory, honor and praise. Lord, this service I'll give into thy hand. प्रभु जी आपके चरणों में ये सर्विस रखते हैं पिता परमेश्वर. I pray कि आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर जी. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर. आज हमारे साथ जो खुशी जी हैं, I pray कि Lord you give her the unction of the Holy Spirit. फादर जी आई प्रे कि आप उसको अपनी पवित्र आत्मा का मसा दें ताकि वो जब बोले. लॉर्ड आई प्रे कि आपका आत्मा आपका रूह उसके द्वारा बोले. प्रभु जी खुशी आनंद की टेस्टिमनी के द्वारा लॉर्ड आई प्रे बहुत से लोगों को आशीषें मिले. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से. खुशी आनंद है मेरे साथ ऑनलाइन, तो आज मैं फिर से प्रीच नहीं करूंगा. Amen? No, it's not amen, but I will do something for a little bit. तो खुशी है जो, she's a film actress, वो एक फिल्म में काम करती हैं साउथ इंडियन मूवीज और अपने हिंदी टीवी सीरियल में भी काम करती हैं. उन्होंने काफी टीवी सीरियल्स में काम किए हैं और अभी वो शी इज द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट. किस तरह से प्रभु ने उनकी जीवन को चेंज किया. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट खुशी जी अगर वो टेक ओवर एंड अपनी टेस्टिमनी दें किस तरह से प्रभु ने आपको छुआ है. देन आफ्टर खुशी उसके बाद आई विल प्रे फॉर एवरीबॉडी. देन आई एम गोइंग टू स्पीक वेरी लिटिल फ्रॉम Psalm 106 verse 1. माय नेम इज खुशी, मेरा नाम खुशी आनंद है और मैं आज अपने जीवन की गवाही आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ. तो मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है. बिकॉज बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया. तो परमेश्वर ने मुझसे भी प्रेम किया है, परमेश्वर ने पास्टर राज जी से भी प्रेम किया है, परमेश्वर ने आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं आप सभी से प्रेम किया है. तो इस प्रेम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद. फिर आगे वचन बोलता है कि ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए. तो परमेश्वर के उस हम क्योंकि आज हम परमेश्वर को जान गए, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का जो अनंत जीवन परमेश्वर अब हमें देने वाले उसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद. और व्यवस्था विवरण 7:6 बोलता है क्योंकि तू अपने यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुना है कि तू प्रजा और निज धन ठहरे. तो मतलब हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर ने पृथ्वी भर के सब देशों के, तो जितने भी देश है उन देशों के सारे लोगों में से हमें चुना है परमेश्वर की पवित्र प्रजा और निज धन मतलब की पर्सनल प्रॉपर्टी. So we are God's personal property and everyone know कि personal property हम लोग कितने संभाल के रखते हैं, हम कितना प्रेम करते हैं, कितना चाहे वो कैसी भी हो. तो अब हम लोग परमेश्वर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो मैं परमेश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना है
और जैसे कि भजन संहिता 35 का 18 जो है, भजन साम 35:18, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच तेरी स्तुति करूंगा। सो आई विल वर्शिप इन दैट बिग सभा, जो बड़ी सभा है, उसमें मैं धन्यवाद करूंगा और स्तुति करूंगा। तो मैं यहाँ पर वी आर इन वेरी बिग, क्या एक्चुअली मेरा इंग्लिश उतना ठीक नहीं है, नो आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश properly, but I'm trying. So बड़ी सभा में, बड़ी सभा इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ दो या दो से ज्यादा, जब दो और दो से ज्यादा लोग परमेश्वर के नाम से एकत्रित होते हैं तो परमेश्वर की वहां मौजूदगी होती है, परमेश्वर वहां होते हैं। तो अभी यहाँ पर दो या दो से ज्यादा जब हम लोग हैं और हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, तो ये ऑटोमेटिक बहुत बड़ी सभा है। और आगे बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। तो जैसे कि जो पास्टर राज नेगी जी हैं, इनका जो कलीसिया है, इनकी जो फैमिली है, सब लोगों ने परमेश्वर की बहुत अच्छी स्तुति करी। परमेश्वर का मुझे बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर का धन्यवाद। तो स्तुति करूंगा। तो उस स्तुति में, और अब हम परमेश्वर के बारे में कुछ, परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो जैसे कि लूका 24:14 says कि वे इन सब बातों पे ऑन द टाइम जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए थे, so everyone was talking about that ki whether he is live or not, he came back or not. So like everyone was talking about that. परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं। जब वो दो लोग भी बात कर रहे थे, दो और लोग थे उस समय, they was talking about Jesus, like he came back or not, like after 3 days. So लूका 24:14 में इन सब बातों पे जो हुई थी, आपस में बातें कर रहे थे 15, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, they was talking about that God, they was talking about Jesus. So now we are talking about Jesus. We are how Jesus did miracle in my life, how Jesus changed my life. So they were talking about Jesus, and now we are talking about Jesus and about that Lord. तो जब वो पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आके उनके साथ हो लिया। On the time Jesus came and start to walking with them. So now I believe, and I know you all believe, now we are talking about Jesus, how Jesus did miracle in our life. So now also Jesus has started walking with us. Now Jesus is with us because परमेश्वर के राज्य में कोई भी वहां पर भेदभाव नहीं है। Like how Jesus was walking with that two persons, because they was talking about Jesus, and Jesus start to walk with them. Like that, if we are talking about Lord, we are talking about Bible, we are talking about Jesus, we are sharing to each other. So now also that Jesus started walking with us. So I believe in that. That's why now our sabha is our team is very big, because the Parmeshwar, that God, Lord is with us, the Jesus is with us. So we are thank you to Jesus. So मेरा नाम खुशी आनंद है, और एज ए प्रोफेशन जैसे सारे लोग उनके फील्ड में काम करते हैं, लाइक होटल इंडस्ट्री है और whatever industries they are working. So like that, in film industry, I am working as a post actress post. I am working. So मेरी फैमिली में कोई भी पहले प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। हम लोगों को लगता था कि प्रभु यीशु लाइक क्रिश्चियन पर्टिकुलर किसी धर्म के वो हैं, गॉड है। लाइक दैट हम लोगों का फैमिली था। मेरे पापा पुलिस में थे, माय फादर he was a policeman, now he got retired. So on the time वो very strict family थी, मेरी फैमिली बहुत strict थी। So one day I asked with my mom, because my one of my friends, she was staying in Mumbai, and she started working in a TV serial, and we was talking on phone. So she called me, you must try in that serial, and like that you can try. तो मैंने मम्मी पापा से पूछा, I asked with my mom and dad, and they got agree कि okay ठीक है, जाओ मुंबई if you want to go.
And before that, I want to share that कि मेरे parents was very strictly. My father, he was in police, and we was a Hindu Brahman family. I belong to Hindu Brahman family, and my mom, she is like very old, old thinking wale type, like that. She was. So they never allow me to go anywhere. From my college also, whenever I got chance, because I was into the sports, and I got selected for that competitions. So I about to go, I supposed to go out of that Indore, because I was living in Indore, so I supposed to go, but my parents didn't allow. They was very pampering, they was keeping me. So उन लोगों को बहुत डर लगता था कि no, we can't send our daughter so like that. So like for a small thing, also they are not allowing me to go anywhere. But that was the परमेश्वर जब हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर की योजना रहती है, the plan of God. So I believe कि whatever things are happening, that all are God's planning only. And we if we are trusting on God plan, so परमेश्वर जब हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं तो वो हमारे भलाई के लिए होती है, वरन हमारी हानि के लिए नहीं होती. तो whatever God is planning for us, that will be for our goodness, for our long life only. God's plan can't never कभी भी हमारे लिए नुकसान नहीं होती, बुरी नहीं होती है. तो that मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है, ओके. तो I came to Mumbai. I gave audition for the that one day that episodic serial आते हैं, like crime serials जो आते हैं, Crime Patrol Savdhan India. I got selected, and that was the I went for the shoot. मैं एक ही जगह पे ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ. मैं शूट पे गई, and that serial got telecast within 2-3 days. और मेरा रोल था very small role. I got maximum for 1 minute I came on screen. But that 1 minute, my parents, they started to believe that okay, our daughter can do this, so she can continue this field. So they allow me to stay in Mumbai. Again, I gave audition for another serial, that serial called Pavitra Rishta. So I started working in that serial. So in that serial, when I was working, that also like for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, like that kind of timing, I was coming on screen daily. So finally, that my third project was I got South ki film, Tamil movie, as a main lead actress. So they called me. So I went for shooting in Chennai. When I was shooting in Chennai, on that time, जो crew members था, जो भी हम लोगों का crew member था, उनमें maximum जो लोग थे, वो they was reading Bible, and they know about Jesus. So they was going to church because the Sunday tha, and Sunday also we was having shoot. So they went to church. I asked with them ki where you going before shoot. So they told me ki they are going like this. So मैंने कहा I feel that ki I just I also want to come with you. I want to read Bible because I used to read books. I love to read books. I love to know about general knowledge, maximum like this kind of things. So in that intention, I thought ki I just want to know about the Bible also, what Bible mention kya hai. So I asked with them. They gave me one Bible, and they told ki Lord loves everyone, like this. Thoda sa explain kiya, and I started reading Bible. So they told me on the time ki whatever you didn't understand in the Bible, so just pray to God, and the Bible will reply you, like this ki Bible tumse baat karegi, Bible tumhe jawab degi. So I thought ki, because on that time I thought ki like we are living in 20th century, and how they are talking, how any book can talk with us, like this I was thinking. But I'm really sorry to God. I thought like that.
but it's true. Bible can speak. Bible is speaking with us. Bible is talking with us. Whatever problem and whatever questions we are having in our life, so we can get answer through the Bible. We can get answer through the pastor. Because that when pastor is talking with you, we should listen very carefully, because anytime God can speak through the pastor with you. Anytime God can answer your problem through the pastor. So like this, so many times it's happened. So I started reading Bible, and when I was reading Bible, so I never found anything wrong about कि Bible में ऐसा कुछ नहीं था. It's never mentioned that कि like you should change your name first. My name is Khushit. So in Bible, it's never mentioned that कि you should first you should change your name, then only you can read Bible. So I started reading Bible, और मुझे बहुत अच्छा लगा Bible में जो कमांडमेंट्स गॉड ने जो हमें दिया है कि वी शुड लव ईच अदर, वी शुड हम लोगों को एक दूसरे को माफ करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए मम्मी पापा की. एंड सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी बाइबल की एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, कि लाइक व्यभिचार जो है, adultery not only like while touching anyone's body. So adultery उससे नहीं हो जाती है कि आपने किसी को टच किया है, but if you are thinking wrong about anyone while you're with your eyes you are watching very badly, and in your heart you are imagining about anyone, also called adultery. And God उन्होंने परमेश्वर ने बोला है कि that's not वो परमेश्वर क्षमा नहीं करते adultery. It's very bad thing in Bible. So that adultery is by eyes. So because women जो है nowadays, तो men also getting this same problem is, but especially women, if we are going outside, so sometimes people, so that man they don't who मतलब जिनको बाइबल नहीं पता है, who never fear about God, who never know about the commandments, so whoever not fear about God, so that kind of people I'm talking. So वो लोग they won't touch you, but they will watch you like you will get embarrassed, like this they will watch. But on the time, like we can't complain about them ki they are watching me, that's why I'm getting embarrassed, so just tell them. We can't say. But that Bible is telling very clearly to us ki that also adultery, that also like sin. So the thing I was thinking ki this is like God whatever gave commandment to us, that is God knows in future like this kind of things is going to happen. So like this, I love this words, everything. So I started reading Bible. While reading Bible, I feel very peace in my mind, in my heart. फिर मेरा शूटिंग खत्म हुआ, I came back to Mumbai, and Mumbai I was shooting for one TV serial. In the TV serial, I met with one actress. Her name is Vaishnavi Mahant. She was in Shaktiman. Geeta Vishwas. She was. तो वो set पे थी. She was my mom in that serial. तो वो set पे थी. We was sitting, and she was reading Bible, and she was praying for everyone. So I went and I asked, "Are you reading Bible?" So she told, "Yeah, I'm reading Bible." So she told, "You know about Bible?" So I told, "Yeah, I know about Bible. I also reading, but in Bible, some things I don't like this. Very clearly I told." And मैं इसीलिए ये बात सबको बताती हूँ, because when starting when we जब हम लोग बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, in starting when we don't know about Bible, from childhood I never read Bible. So जब पढ़ना शुरू करते हैं, so many doubts will come in our heart, maximum like especially about the Old Testament. So many things is there, so many questions was there in my mind about the Old Testament. Even I was thinking like this is like why it's happened, this should not happen like this, I was thinking. So she told कि दोनों ऐसे कोई conclusion नहीं निकालना चाहिए, we should not like अपने हिसाब से according to us our mind, we should not get any like conclusion कि ओ इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है. She told me some things what doubt I was having, so उन्होंने मुझे clear किया. After that she told
if you want to know more about Bible, if you want to know more about Jesus, so you can come to our church. So I told, okay, I want to come in your church. So she gave address, and I went to the church. So first time in my life I went to in church, and there was worship was going on the time. ठीक है, वहां पर वर्शिप हो रहा था। तो जब मैं वर्शिप में मैं गई तो मुझे ना वर्शिप में बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने मेरी लाइफ में वर्शिप सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि लाइक क्योंकि मैं ऑलरेडी बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था, बट मैं वर्शिप तो मैंने नहीं सुनी थी, मैं जाती नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं अभी भी कि बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, बट ये सोचते हैं कि अरे अभी तो वर्शिप हो रहा होगा, लेट जाएंगे थोड़ा। तो मैं वर्शिप मैंने कभी नहीं मतलब मेरी लाइफ में कभी नहीं सुना था कि वर्शिप क्या है, कैसा है। तो क्या हुआ कि जब मैं बाइबल पढ़ने लगी थी, मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगती थी, बट मुझे प्रेयर करना नहीं आती थी, प्रार्थना करना नहीं आती थी। कि लाइक आई वाज थिंकिंग कि देयर इज सम डिफरेंट लैंग्वेज टू टॉक विद गॉड, क्योंकि जैसे मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जीसस आज आपने खाना खाया क्या, जीसस गुड नाइट गुड मॉर्निंग। मैं ऐसे सोचती थी कि मैं अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ। तो जब मैंने वर्शिप फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को वर्ड्स मिल गए हैं। लाइक वॉट एवर फील वी हैव अबाउट लॉर्ड, सो दैट फीलिंग कैन गेट वर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी फीलिंग्स को वर्ड्स मिल गए हैं थ्रू द वर्शिप, एंड मुझे वो बहुत पीसफुल लगा। इवन आई फील लाइक क्राइंग बिकॉज इवन ऑन द I don't have any problem in my life, like very big issue की like I'm suffering with a very big issue। तो ऐसा कुछ था नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल लाइफ थी। देन ऑल्सो I feel like crying, and I was literally I was crying कि why I'm crying like this, I was thinking। फिर मैं नॉर्मल हो गई, एंड देन पास्टर ने जो वर्ड ऑफ गॉड शेयर किए वो मैंने सुने, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि लाइक मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, आई गॉट आंसर। तो जो भी मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, तो फिर लाइक मेरे लाइफ में जीसस जो है, जीसस के बारे में अगर कुछ है तो लाइक ऐसा है कि मिरेकल जो विजिबल मिरेकल है वैसा कुछ नहीं हुआ कि जैसे मिरेकल की समथिंग इज फ्लाइंग और कुछ लाइट बन चालू, लाइक दैट काइंड ऑफ मिरेकल्स विजिबल वाला नहीं हुआ। बट इन माय हार्ट आई गॉट पीस, इन माय हार्ट आई गॉट सेटिस्फैक्शन कि या दैट इज ही इज अ लिविंग गॉड। वो मुझे अपने 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 हार्ट में मुझे फील हुआ, टच हुआ कि हाँ यही परमेश्वर है, एंड आई शुड फॉलो जीसस। तो वहां पर जीसस को फॉलो करने का कोई स्पेशल पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं था, कोई लालच नहीं था कि लाइक मुझे हाँ ओके। बिकॉज देखियो जीसस को फॉलो करने के लिए टू टाइप पीपल्स इज देयर, कि किसी किसी के लाइफ में परमेश्वर ने पहले चमत्कार किया, पहले कोई मिरेकल किया, देन दे केम इनटू लॉर्ड। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी भी है और बाइबल में भी है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ कि पहले वो लोग परमेश्वर में आए, जीसस को फॉलो किए, बाद में उनकी लाइफ में मिरेकल होने लगे। तो आई एम दैट सेकंड वन कि मैं जब मुझे परमेश्वर के बारे में, जीसस के बारे में पता चला, उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हुए। मिरेकल इन द सेंस हम लोगों की लाइफ में जो भी मिरेकल होते हैं वो हम लोगों को उसमें सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ यू शुड हैव दैट शांति, आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। बिकॉज इफ यू हैव जीसस देन ओनली यू विल हैव सेटिस्फैक्शन, whether you have a very big thing or you don't have anything, then also you will have satisfaction। So Jesus can give you satisfaction whether you don't have anything। तो मैं मतलब मैं फिर उसके बाद में मैंने मेन लीड में काम किया, फिर मैंने मेन लीड में सीरियल किया, देन अगेन आई हैव डन 2-3 days 1 day 2 days वर्क ऑल्सो, बट आई नेवर फील लाइक इन माई हार्ट कि ओ व्हाट इज गोइंग ऑन, कि मैं तो मतलब मेन लीड मेन एक्ट्रेस मैंने काम किया है इतने बड़े प्रोजेक्ट में कि जहाँ पे इतने सारे लोग मैडम 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 करके घूम रहे हैं। मेरी असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट रहती है वहां पर। जब आप मेन लीड में करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो आपकी एक पर्सनल असिस्टेंट रहेगी, आपको पर्सनली मतलब एक जो मेन लीड रहते हैं उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है,
जो वनडे टू डे के लिए आते हैं उनको बहुत अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, रूम शेयर करना पड़ता है, और जैसे जब सब कुछ चाय कॉफी और खाना मिलेगा तब आपको मिलेगा। बट अगर आप मेन लीड में है तो आप एनी टाइम यू कैन आस्क टी कॉफी, यू कैन आस्क अकॉर्डिंग टू यू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जो ट्रीटमेंट रहता है। तो आई नेवर फील कि अरे यार मैंने इतना बड़ा कुछ किया है और अभी मैं वनडे टू डे करी, बिकॉज मुझे जो भी मिलता था मुझे ये लगता था कि परमेश्वर की ओर से मिलता है। मैं आपको एक मेरा लाइफ का एक एग्जांपल मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम सीरियल में यहाँ पे काम करते हैं मुंबई में, तो वॉट एवर वी आर शूटिंग टुडे, तो लाइक जनवरी में जो भी मैंने शूट किया है, तो आफ्टर 3 मंथ मुझे उसका पेमेंट मिलता है। तो लाइक जनवरी का आपको अप्रैल में मिलेगा, फरवरी का उसके बाद मिलेगा, तो आफ्टर 3 मंथ यू विल गेट द पेमेंट। तो वहां पर ऐसा था, मैं मुंबई आई, पापा पुलिस में थे, बट नॉट दैट मच, लाइक ही कांट अफोर्ड दैट मच कि मेरा रूम रेंट और वो सब कुछ दे सके। बट मुझे स्टार्टिंग में जो मूवी मिली, सो मैंने फिर अफोर्ड किया, मेरा हो गया था मैनेज। बट मुझे एक मोबाइल चाहिए था जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, ताकि मैं उसमें अपनी, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया था, तो मैं उसमें अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकूं, मोबाइल में अच्छी पिक्चर्स क्लिक करूं ताकि मैं किसी को सेंड कर सकूं। बट आई डोंट हैव दैट मच मनी टू बाय वेरी गुड मोबाइल। तो मैं आई वॉज प्रेइंग टू गॉड कि लाइक अगर मैं थोड़ा थोड़ा like what speed I was getting money, so in that speed if I will get money, तो मुझे मोबाइल लेने में एटलीस्ट मुझे 5-6 मंथ लगेगा, बिकॉज मुझे रेंट भी पे करना है, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस भी है, और सीरियल और मूवी का वी डोंट नो कि कभी आपके पास काम है कभी नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे लूं, बट देन ऑल्सो व्हाट आई वाज हैविंग, आई वाज हैप्पी विद दैट। तो मेरे मन में हमेशा पीस रहता था। तो फिर लाइक व्हाट हैपेंड सडनली, लाइक नोटबंदी, यू नो अबाउट नोटबंदी, दैट नोट चेंजिंग वाला जो हुआ था। तो ऑन द टाइम मैं आई गॉट 2-3 प्रोजेक्ट, एंड मैंने वहां पर जब मुझे मतलब बैक टू बैक 2-3 प्रोजेक्ट मिले, उनका एडवांस मिला। इवन 1-2 प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, दे डिडंट स्टार्टेड टिल नाउ। तो मैंने वहां पे मुझे 2-3 प्रोजेक्ट का एडवांस मिल गया। तो मतलब एक फोन तो छोड़िए, मैं 2-3 फोन खरीद सकती थी, इतने मुझे एडवांस मिल गया। तो मतलब मैंने मेरे लिए मोबाइल खरीदा, मेरे भाई को मैंने गिफ्ट किया, छोटे भाई को, क्योंकि वो भी कॉलेज जा रहा था। लाइक फर्स्ट टाइम आई फील कि ओके मैंने मेरी फैमिली के लिए कुछ किया है। तो मैंने वैसे किया। और अभी कुछ टाइम पहले, लाइक आफ्टर 2 years, अप्रोक्स 2 years हो गए या 3 years, जब भी हो, मेरा वो फोन गुम गया। एक फोन मेरा गुम गया, एक और फोन चोरी हो गया। तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, दुख हुआ, अरे यार मेरा फोन क्यों गुम गया। बट आई थॉट कि when I am not able to buy one phone, on that time Jesus, that God gave me that कि I can buy 3 phone. So if now I lost one mobile, so why I am crying for this? Because जब भी on that time God gave me when I don't deserve, when I don't work hard for that, then also Jesus gives me. तो अभी मुझे अगर मेरे पास से गया है तो why I am crying? तो मतलब मैं आप लोगों को भी यही इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप, अगर हम अपने पास्ट में देखें तो परमेश्वर ने हमें डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ किया है कि जिसके लिए हमने ना तो बहुत मेहनत करी है, ना हमने कभी एक्सपेक्ट किया था, बट देन ऑल्सो परमेश्वर ने हमें दिया है कि जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अरे परमेश्वर ने मुझे दिया, इवन आई डोंट डिजर्व। तो अगर आज हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज उस चीज से कंपेयर कीजिए कि जब मैं डिजर्व नहीं करती थी, परमेश्वर ने मुझे तब दिया, तब मैंने परमेश्वर की जो प्लान है, जो योजना है, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि अरे वाह, मैं परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये तो परमेश्वर की योजना से मुझे मिला है। तो इफ यू लॉस्टिंग एनीथिंग टुडे, तो जस्ट देन ऑल्सो से थैंक्स टू गॉड कि परमेश्वर आपकी योजना होगी, इट्स योर विश, इट्स योर प्लान कि ये चीज मेरे पास से गुम हो गया है, मे बी समवन नीड मोर देन मी। तो ऐसे करके, तो वो जो पीसफुलनेस है, वो जो समझ है, वो जो धैर्य बोलते हैं ना, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही मिलती है जब हम आत्मिक भोजन करते हैं परमेश्वर का। तो ऐसा मेरी लाइफ में हुआ। एंड आफ्टर दैट बैक टू बैक मुझे बहुत सारे सीरियल मिले। फिर मैंने जो मैंने सबसे ज्यादा सीरियल किया था वो था कुमकुम भाग्य। उसमें सोनाली का मेरा कैरेक्टर था, जो तनु की सिस्टर, कजिन सिस्टर है।
जब तनु की शादी होती है तब मैं आती हूँ, उसमें मेरी एंट्री थी। फिर मैंने त्रिदेवियां सीरियल किया, और बहू हमारी रजनीकांत, जब वो लोग एक फिल्म बना रहे थे तो उनको एक भोजपुरी एक्ट्रेस चाहिए थी, तो वो मैं बनी थी उसमें। और फिर मैंने एपिसोडिक प्यार तूने क्या किया वो 2-3 बार किया है। और फिर मैंने हिंदी फिल्में भी की है। तो हिंदी फिल्मों में मेरी जो लास्ट सपना चौधरी वाली एक मूवी थी, मेरे हस्बैंड भी थे उसमें, तो वो रिलीज हुई थी। और एक हिंदी फिल्म तो बहुत ही ऐसी लो बजट थी, वो मैंने स्टार्टिंग में करी थी तो वो भी रिलीज हुई थी। और 2-3 कुछ ऐसे हैं जो रिलीज नहीं भी हुए। बट जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, व्हेनेवर आई नीड कि अरे मुझे अभी काम करना ही है, तो परमेश्वर ने हमेशा मेरी सुनी है, और मुझे बैक टू बैक मुझे काम भी मिला। और फिर आफ्टर सम टाइम मेरे पेरेंट्स वांट मी टू गेट मैरिड, कि मैं अब शादी कर लूं। So I met with Vikrant, so he is also actor. तो वहाँ वो भी एक टेस्टमनी है, बिकॉज एक मतलब एक विश्वासी लड़का, इवन इफ यू आर इन फिल्म इंडस्ट्री, तो बहुत बड़ी बात है कि आपको परमेश्वर को मानने वाला एक लड़का मिल गया जो खुद एक्टर है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बड़ी टेस्टमनी है। तो क्या हुआ कि हम लोग एक फिल्म की मीटिंग के लिए हम लोग मिले, वी मेट। तो वहां पे आफ्टर मीटिंग एवरीवन वाज ऑफरिंग हिम फॉर दैट दारू की, अरे हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं ऐसे। तो वो बोलते नहीं नहीं no, मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट स्मोक, आई डोंट दैट ड्रिंक लाइक दिस, वो उनको बोलने लगे। तो मुझे भी ऑफर किया, मैंने भी मना किया था। फिर क्या हुआ, उनको बहुत फोर्स किया। So someone told to that person, you don't force him, he won't take because he is following Jesus. So first thing I got मुझे बहुत अच्छा लगा, I got proud also, like who never read Bible, who never trust on Jesus, that person is giving testimony about him because he knows Jesus, he is following Jesus, so he won't do anything wrong. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मैं बहुत जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को जो फॉलो करते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड होता है उन लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उस पर। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। तो फिर वहां पे ये, और उसके बाद में फिर मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि अच्छा यू आर फॉलोअर ऑफ जीसस, सो लाइक दैट वी मेट टू ईच अदर। फिर मैं उनकी चर्च जाने लगी, और हम लोग एक ही चर्च में जाने लगे थे, क्योंकि मेरा उनका जो चर्च है वो मॉर्निंग का रहता था 7 बजे का, और मेरा जो मैं जहाँ पर जाती थी वहां पे मुझे 11 बजे जाना पड़ता था। बट सम टाइम ऐसा होता था कि मेरा शूटिंग रहता, तो मैं 7 बजे इनके चर्च में जाती थी कि हाँ मुझे 9 बजे से मेरा शूटिंग है, तो मुझे इसलिए 7 o'clock में चर्च अटेंड करके फिर मेरा शूट पे निकल जाती थी। तो ऐसे करके तो हम लोग एक दूसरे के साथ में मिले, हम लोगों को एक दूसरे का अच्छा लगा, नेचर व्यवहार अच्छा लगा। और फिर हमारे पेरेंट्स ने एक दूसरे को मिले, तो हमारे पेरेंट्स एक्चुअली, मेरी जो मदर इन लॉ है, शी ओनली आस्क फर्स्ट विथ माई हस्बैंड कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड नाउ। सो ये उन्होंने मुझसे शेयर किया। सो लाइक दैट वी स्टार्टेड कि ठीक है, वी शुड गेट मैरिड। सो आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टू लव ईच अदर very clearly, very honestly, I'm telling you, we started to love each other. But then also we was praying to God, I want to marry with him, and he was praying, I want to marry with her. But then also मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। If you want कि we should get married, then only we should get married. So like this we started to pray always, even we love each other like anything, we want to live with each other, we want to marry with each other, then also that heart God only can give, because that वो जो भरोसा था, जो विश्वास था, बहुत बार परमेश्वर ने हमें दिखाया है। वी फील दैट कि परमेश्वर ने बहुत मिरेकल किए इन आवर लाइफ। सो वी स्टार्टेड टू लाइक विश्वास जो था कि परमेश्वर के पास हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं होती है। परमेश्वर कभी भी हमारे लिए गलत योजनाएं नहीं वो करेंगे। तो हमारा जो लाइफ पार्टनर है, हम लाइफ पार्टनर के लिए भी जब परमेश्वर पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर अच्छा लाइफ पार्टनर देते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपने उत्पत्ति में पढ़ा है कि जब परमेश्वर ने एडम को बनाया, उसके बाद सोचा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसके सहायक के लिए
जब एक वो हवा को बनाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने सर्च किया, सारे जानवरों को भी मैच किया कि हाँ ये इस जानवर को बनाओ. सो आफ्टर लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द एनिमल्स, फिर उसके बाद उसको गहरी नींद में डाल दिया. बहुत सोच विचार के बाद वहां पे क्लियरली लिखा है कि उससे मेल खाता हुआ उसका सहायक बनाया. तो परमेश्वर ने भी जब हवा को बनाया तो एडम से मैच करता हुआ. सो हमसे मैच करता इन द सेंस व्हाट वी आर लाइक वी आर वॉकिंग इन फियर ऑफ गॉड एंड वी आर वॉकिंग इन लव ऑफ गॉड. तो फियर मतलब ये चीज का फियर नहीं होना चाहिए कि अरे अगर मैंने कुछ गलत किया तो गॉड विल गिव मी पनिशमेंट एंड ही विल सेंड मी टू हेल. वो वाला फियर नहीं. फियर होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है, ही इज लविंग मी. आई डोंट वांट टू ये जो प्यार है परमेश्वर का, ये मुझे नहीं खोना है. आई डोंट वांट टू लॉस दिस लव. तो परमेश्वर का प्यार नहीं खोने वाला जो फियर है वो हमारे अंदर होना चाहिए. और डेफिनेटली जो प्यार है परमेश्वर से, हमें वो करना चाहिए. सबसे बढ़कर हमें प्रेम करना चाहिए परमेश्वर से. तो वो जो प्यार है, तो मैच करना मतलब कि आपका लाइफ पार्टनर भी परमेश्वर का वो फियर और वो लव होना चाहिए आपके पार्टनर में. क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जब परमेश्वर होते हैं तो सम टाइम लाइक परमेश्वर इन द सेंस बाइबल के जो वचन है, बिकॉज ये शुरू में लिखा हुआ है जैसे जॉन में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, ये भी लिखा हुआ है. तो इसका मतलब जब हम बाइबल पढ़ते तो बाइबल के ये जो वचन है वो प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा है. तो जब हम ये बाइबल के वचन पढ़ते हैं तो जो हमारा जो व्यवहार हो जाता है, हमारी जो सोचने की हमारी जो सोच हो जाती है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है. तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हमारी लाइफ इजी हो जाती है. सम टाइम मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों के बीच में, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग सबके बीच में होती है, लड़ाइयां सभी के बीच में होती है, ऑलमोस्ट सभी के बीच में होती है. तो शायद कुछ लोगों के बीच में नहीं होती हो, लेकिन हम लोगों के बीच में भी होती है. स्पेशली हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, डेली बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. तो मेरी और उनकी भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. लेकिन क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में है या कोई भी फील्ड में आप घर से बाहर निकलते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे वहां पे आदम की वाटिका में तो सिर्फ एक ही सांप था, एक ही स्नेक था आपको बहकाने के लिए. बट अभी तो हम बाहर निकलते तो बहुत सारे स्नेक्स रहते हैं आपको भड़काने के लिए, आपको गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, आपको बहकाते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती है. लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें ये पता है कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मेरा पार्टनर बाइबल पढ़ता है, तो ही कैन चीट मी बट ही कैन चीट टू लॉर्ड. क्योंकि ही नो वेरी वेल about adultery, he know very well about bad habits, he know everything कि what is wrong and what is right. and उसकी जो पवित्र, देखो बाइबल मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है. वन मोर थिंग इज देयर इन द बाइबल कि फ्रॉम द चाइल्डहुड इन स्कूल we are learning this only, that what commandments we got in Bible कि don't you should respect your parents, don't lie to each other, चोरी नहीं करना है, बुरी चीजें, whatever like in Bible God gave commandment to us, that all things we are learning from the school, from childhood. Our parents also teaching us कि don't do this kind of things, but then also we are doing that thing, that some पाप हम लोग फिर भी करते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं. बट डिफरेंट हो जाता है जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं. बिकॉज कि जब हम बाइबल नहीं पढ़ते थे वो टाइम पर हम वैसे बच्चे हैं कि हमने एग्जाम की पूरी तैयारी करी है, बट हम एग्जाम में बैठते हैं, परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं. बट जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं और बाइबल से पवित्र आत्मा जो हमें मिलती है परमेश्वर की ओर से, जो आपको हर वक्त बताती है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, यू शुड नॉट डू दिस. तो वो जो पवित्र आत्मा है वो मतलब गाइड, जो बोलते हैं ना आंसर शीट हम लोगों. तो अब जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमारे पास आंसर शीट है. तो वो आंसर शीट जो बाइबल है, परमेश्वर के जो वचन है, अब हम अपनी लाइफ की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें जाने के पहले वो आंसर शीट पढ़ते हैं, उसको अपने दिल में रखते हैं. क्योंकि वो अब हमारे मतलब दिमाग में नहीं, हमारे अंदर है परमेश्वर की वचन जो है, क्योंकि पवित्र आत्मा अब हमारे पास में है. तो वो आपको रोकती है. तो मैं ये नहीं बोलती कि जो लोग बाइबल पढ़ते परमेश्वर
को बिल्कुल मानते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु के फॉलोअर, उनसे गलतियां नहीं होती है। हम मनुष्य हैं और हमसे डेफिनेटली गलतियां होती है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी कोई हैबिट है जो गलत है, हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो जब हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि लॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइबल जो है, मैं आपको वो उसके बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि बाइबल का जैसे फुल फॉर्म अगर बोले तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग द अर्थ। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं हम लोग, तो सब हर चीज के साथ एक मैनुअल बुक आता है जो आपको बताता है कि आपको इस मशीन को ऐसे ऑपरेट करना है, अगर ये मशीन स्लो पड़ जाती है तो उसको आपको ऐसे चार्ज करना है, ये करना, मतलब मैनुअल बुक में सब कुछ लिखा रहता है। तो जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमारे साथ में मैनुअल बुक भी देती है बाइबल के रूप में। तो आज जब हम लोगों की मशीन जो है, हमारी आत्मिक मशीन, जब ठंडी पड़ जाती है, जब खराब हो जाती है, आज हम लोग जब किसी दुख में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में जाते हैं, तो हमें ये बाइबल को खोलना चाहिए, हमारी जो मैनुअल बुक है उसको खोलना चाहिए, और इसके अंदर आपको अपने आप को चार्ज करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है, अपने आप को देखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। तो बाइबल आपके लिए एक आईना भी है। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हमें हर रोज अपने आप को बाइबल के अंदर देखना चाहिए। हम जैसे नॉर्मल मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो हम लोग सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं कि हाउ आई एम लुकिंग, तो लेकिन जब हम बाइबल डेली पढ़ते हैं तो हमारा जो आत्मा है, आत्मिक रूप से हम अपने आप को उसके अंदर जज कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम बाइबल में अपने आप को देखते हैं तब हमें पता चलता है, जब हम चर्च में जाते हैं, पास्टर हमें बताते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रीचिंग में, कभी भी जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इफिसियों 5:26-27 में लिखा है कि उनको वचनों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाओ। तो जब हम मिरर में अपने आप को बाहरी रूप को देखते हैं तो हम पानी से अपने आप को नहा के रेडी होते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है कि वचनों के द्वारा, तो मतलब जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो हम शुद्ध होते जाते हैं। एक आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक पापा, मतलब फादर जो रहते हैं अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम बाइबल पढ़ा करो रोज। तो वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है। कुछ दिन बाद उसके पापा से आके बोलता है कि डैडी मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, मुझे नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके डैडी उसको बोलते कोई बात नहीं बेटा, उसको एक टोकनी देते हैं, और वो टोकनी जो बास्केट रहता है वो देते हैं, और बोलते कि जाओ नदी में से इसमें से पानी भर के ले आओ। तो वो जाता है, टोकरी में पानी भर के लाता है, तो वो पूरा पानी गिर जाता है। 2-3 बार ऐसे ही करता है, फिर वो फाइनली उसके डैडी के पास आके बोलता है कि पापा अभी भी मैं पानी भर रहा हूँ लेकिन इसमें पानी नहीं भर पा रहा, मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके डैडी बोलते कोई बात नहीं बेटा, आप जो काम करने गए थे वो नहीं हो पाया, लेकिन जब आप गए थे तो ये टोकनी लेके, जब व्हेन यू वेंट टू द रिवर विद दिस बास्केट, सो हाउ वाज द बास्केट? तो उसने बोला ये गंदा था, बहुत ही गंदा था, इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी थी। तो लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम लाया तो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी धुल गई, दूसरी बार बास्केट और धुल गई, तीसरी बार और धुल गई, तो बास्केट बहुत क्लीन हो गई। तो इसी तरह से बाइबल होती है। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, जब जो प्रभु के दास जो आपको वचन शेयर करते हैं वो आप सुनने शुरू कर लगते हैं, वर्शिप अटेंड करने लगते हैं, आपको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा हो शुरू में। मुझे भी बहुत टाइम तक नहीं समझ में आता था, मुझे भी बहुत टाइम तक ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है, कुछ चीजें समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। तो लेकिन जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते, परमेश्वर के वचनों के साथ रहना शुरू करते, तो अपने आप जो हमारे मन के अंदर की जो टोकरी है वो धुलती जाती है, क्योंकि जब तक पुराने जो बर्तन है, गंदे बर्तन, आप जब तक उसको धोगे नहीं तब तक उसमें अच्छी चीजें कैसे डालोगे? हम ऐसा तो नहीं करते कि घर में गंदे बर्तन है, वो उसी में खाना खाते जा रहे हैं, उसको पहले धोते हैं तभी उसके अंदर कुछ नया डालते हैं। तो बाइबल भी वैसे ही है, जब हम पढ़ते रहते तो वो अपने आप हमारे मन की टोकरी को वो साफ करती जाती है। तो बाइबल आपको फिर ऐसा बोलते हैं, इफिसियों 5:27, इफिसियों 5:27, और इसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर, जिसमें ना तो कलंक हो, ना झुर्री हो, ना ऐसी कोई वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो।
तो यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं कि हमें अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा शुद्ध करना है, फिर उसमें इसलिए शुद्ध करना है कि उसमें कलंक ना हो। कलंक इन द सेंस जो हमारे अंदर जो बुरी हैबिट्स है, जो भी जितनी भी बुरी हैबिट्स है, सब लोगों को पता है कि बुरी हैबिट्स में क्या क्या होता है, किस तरह की बुरी हैबिट्स होती है। कोई भी बुरी हैबिट्स हमें नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ना झुर्रियां, झुर्रियां इन द सेंस एज वाली झुर्रियां नहीं, दैट्स नॉट एज वाली झुर्रियां। झुर्रियां इन द सेंस की मैंने एक और जगह में कि झुर्रियां मतलब जब हम ऐसे चर्च में ऐसे सुनते हैं, जब पास्टर हमें बता रहे हैं बाइबल के बारे में और हम लोग ऐसे झुर्रियों के साथ में बैठे हैं, मतलब कि उत्साह नहीं है, हम वो बिल्कुल हमारा फेस बना के बैठे हैं कि अरे यार कब खत्म होगा ये, तो वैसी वाली झुर्रियां। तो परमेश्वर बोलते हैं हमारा मन हमेशा उत्साह होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि मतलब हम ये झुर्रियां इन द सेंस कि सभी लोग क्या बोलते हैं कि जैसे कि जो लोग बुजुर्ग एज में हो जाते तो वो लोग एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी एज हो गई है, वो लोग एक्टिव नहीं हो पाते जल्दी जल्दी, वो लोग बहुत स्लो रहते हैं। तो परमेश्वर की नजरों में आपका जो शरीर का जो एज है, वो एज की वजह से झुर्रियां नहीं, जो आपके अंदर जो आपका मन जो एज हो गया है और आप में अब कोई उत्साह नहीं है, आप चर्च में बस ऐसे बैठे हुए हैं झुर्रियां लेकर के, अरे यार ये कब खत्म होगा, बिल्कुल बोरिंग वाला जो है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसी कलीसिया बनो, ऐसी कलीसिया को परमेश्वर ने दुल्हन कहा है और परमेश्वर यीशु मसीह दूल्हा है। सो ऐसी ब्राइड बनो कि जिसको कलंक ना हो, जो हम बुरे जो हमारे हैबिट्स है उनका, जिसके अंदर झुर्रियां ना हो, ये जो उत्साह नहीं रहता है वैसी वाली झुर्रियां। हाँ, और आगे लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हो और कोई भी वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो हम लोग अपने मन को हमें पवित्र रखना चाहिए, मतलब किसी को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष इन द सेंस कि हम जाने अनजाने में गलतियां तो अभी भी होती, बट मैक्सिमम वी शुड ट्राई कि हम किसी के लिए हम मतलब दोषी नहीं ठहरे, किसी के लिए कोई गलत ना हो। तो इस तरह से हमें अपने आप को जो बाइबल है, बाइबल के आईने में खुद को देखना चाहिए। जब हम बाइबल के आईने में इस तरह से डेली खुद को देखते, पास्टर आपको बोलते हैं जैसे मैंने देख लिया, अच्छा बाइबल में ऐसा लिखा है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट मैं तो गुस्सा करती हूँ, इन द सेंस कि आई एम नॉट फिट फॉर, अभी भी मुझ में ये कमी है, और मैं अभी भी बैक आंसर करती हूँ किसी को, अच्छा ये भी मुझे चेंज करना है। तो इस तरह से हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। जो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम ये चर्च में सुनते हैं, तो हमें वैसा इंसान बनना चाहिए कि हमने सुन लिया, हमने अपने आप को परख लिया, अपने आप को बाइबल के इस मिरर में देख लिया, तो उसको अब ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल वैसा इंसान नहीं बनना चाहिए कि जैसे कि याकूब 1:23 में लिखा है, याकूब 1:23 कि जो कोई वचन को सुनने वाला हो परंतु उस पर चलने वाला ना हो, तो वह मनुष्य उसके समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वह अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। तो हम चर्च में गए, बाइबल पढ़ी या चर्च में गए, हमने सुना और उसके हिसाब से अपने आप को मैच किया, बाइबल के उस मिरर में देखा कि मैं तो वैसा नहीं हूँ। उस समय मैंने अपने आप को जांच लिया, सुना और मैं भूल गई, चर्च से बाहर निकली, वापस जो मेरा नेचर है मैं वैसे ही रहने लग गई, वापस वैसे। तो ये जो चीजें हैं, हमें वैसे नहीं बनना है कि हम लोग मतलब इसलिए वह अपने आप को देख कर चला जाता है। हम चर्च में खुद को देख लें, बाइबल में खुद को देख लें और चले गए और हम भूल गए कि हम कैसे थे। तो हमें वैसे नहीं बनना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, अब जब हमको पता चल गया है कि मेरे अंदर अभी भी ये कमी है, मैं अभी भी जो बाइबल वाला जो मेरा मिरर है उसके हिसाब से अभी भी मुझ में ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। 2 तिमुथी 2:15 कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो। परमेश्वर हमें बोलता है प्रयत्न करो, प्रयत्न इन द सेंस कि हमें वी शुड ट्राई कि मुझे अपना ये हैबिट जो है उसको चेंज करना है, जो बाइबल आपको अलाउ नहीं करती, जो परमेश्वर की नजरों में फ्रंट ऑफ लॉर्ड इट्स बैड थिंग, तो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। तो उसके लिए प्रयत्न करो। तो हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर ली कि परमेश्वर मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं जब भी गुस्सा आए तो आप मुझे रोकना, और सिर्फ मैंने ये बोल के छोड़ दिया। अब मुझे कोई ऐसा हुआ कि छोटी सी कोई चीज किसी से मैं टकराई और फिर मुझे गुस्सा आ जा रहा है,
आई शुड ट्राई। क्योंकि जब बच्चे मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे बच्चे जो है, हम चाहते हैं कि वो एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए, बट वो रिजल्ट तो नहीं ला पा रहे। लेकिन हमने देखा कि पूरे साल उसने बहुत कोशिश करी, रात दिन हमने देखा कि वो पढ़ाई कर रहा है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, और वो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। बट उसका रिजल्ट हमारे लिए सेकेंडरी हो गया। अभी हम लोगों को रिजल्ट का उतना नहीं है, लेकिन अभी हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके उस कोशिश को, उसका जो प्रयत्न है, उसका वो जो ऑलवेज इज ट्राइंग टू लाइक। तो जब हम परमेश्वर के सामने ट्राई करते हैं, और परमेश्वर को वी कैन चीट, कि हम मम्मी पापा को मैं चीट कर सकती हूँ कि मैं पढ़ाई करने बैठी हुई हूँ, हाँ मैं पढ़ रही हूँ, और आई एम नॉट स्टडिंग बट आई एम एक्टिंग लाइक आई एम studying. But we cannot cheat to Lord. Lord know very well कि really we are trying to change ourselves, or we are मतलब we are doing acting कि I am trying to change myself. तो परमेश्वर know everything कि आप सच में ट्राई कर रहे हो या नहीं। तो वैसे हमें अपने आप को चेंज करने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो परमेश्वर हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की नजरों में नहीं गिरना चाहिए। तो मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आए, मेरे हस्बैंड के सामने भी बहुत ऑप्शंस आए कि लाइक शॉर्टकट बहुत सारे आए, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आए जो बाइबल डोंट अलाउ यू टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, वैसे प्रोजेक्ट्स आए, वैसे लोग भी हमारी लाइफ में आए, हम दोनों की लाइफ में। तो वहां पर हम लोगों ने, लेकिन सम टाइम हम लोग लालच भी करते हैं। आई फील कि प्रैक्टिकल मैंने सोचा कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करती हूँ तो फाइनेंशियली भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मेरे करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। बट व्हाट अबाउट गॉड, अगर ये प्रोजेक्ट करती हूँ तो परमेश्वर की नजरों में तो हम गिर जाएंगे। अगर परमेश्वर की नजरों में गिर जाएंगे तो उसके बाद हमें कौन संभालेगा, वो पीस हमारे दिल से चली जाएगी। तो फिर उस समय हमारे लिए परमेश्वर के ये जो वचन है वो हमारे लिए धैर्य का काम करती है, धीरज का काम करती है। रोमियो 15:4, रोमियो 15:4 कि जितनी बातें पहले से लिखी हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। तो बाइबल आपको बोलती है कि बाइबल में जितनी चीजें लिखी है वो हमें शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं, हमारे लिए लिखी गई हैं। क्यों लिखी है? ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। धीरज मतलब कि पेशेंस, लाइक हम लोग पेशेंस रखें, और शांति के द्वारा लाइक बाइबल की जो शांति मिलती, पवित्र शास्त्र की जो शांति मिलती, उसके द्वारा आशा रखें, हम उम्मीद रखें। तो उस समय इस तरह के जो वचन रहते, परमेश्वर इस तरह से हमें बात करते हैं, इस तरह से आपको पास्टर आपको वचन, जब आप चर्च में जाते हैं तो उस समय, जैसे मेरी लाइफ में भी सोच रही हूँ मैं कि ऐसे दो राहें पे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उस समय अगर मैं करती हूँ तो पता नहीं नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, मैं क्या करूंगी, मुझे बहुत सारे मेरे एक्सपेंसेस भी, ये सब चीजें सोचती हूँ। लेकिन जब मैं वहां पर गई, मुझे इस तरह का कोई वचन मिला, तो इस वचन में आपको साफ परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमें धीरज रखना चाहिए, और परमेश्वर के वचनों की शांति के द्वारा हमें उम्मीद रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए। तो ये चीजें आप परमेश्वर आपको बताते हैं, तो जिसकी वजह से हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। तो जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े रहोगे, चर्च में नहीं जाओगे, और ये सब नहीं, कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो ये सब हम नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैं वैसे चर्च जाने लगी थी, और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमेशा चलने का हमेशा मैं प्रयास करती रहती थी, अभी भी करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ जैसे परमेश्वर ने हमें कहा है। तो उसके बाद से फिर मेरी शादी हुई विकांत जी से, और हम लोगों की लाइफ, मतलब फिर मेरा करियर ठीक हो गया, और मेरे घर में भी मेरे मम्मी है, सिस्टर, भाई बहन है, अभी सब लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उनके मन में भी वो शांति है परमेश्वर की। फिर मेरे हस्बैंड जो है, फिर मेरी एक छोटी सी बेटी भी है 2 साल की, तो उसके बारे में भी गवाही है, मैं किसी और दिन शेयर करूंगी, अभी तो शायद काफी टाइम भी हो गया है। तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत सारे कार्य किए हैं, मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा करियर दिया। सबसे बढ़कर परमेश्वर ने मेरे मन में शांति दी। मुझे कुछ मिला तो भी और मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत बार ऑडिशंस दिए और सब कुछ किया, बट मेरा वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बार ऐसी फिल्में मिली, ऐसा काम मिला कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जिस हीरोइन को फाइनल किया था
वो हीरोइन लास्ट मोमेंट पे नहीं आई और उनके पास में मेरा नंबर था और मेरी प्रोफाइल उनके एक्ट्रेस के हिसाब से मैच हो रही थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे लाइक रात को कॉल किया कि कल सुबह से शूटिंग है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए। तो जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको सही समय पर परमेश्वर सही लोगों से मिलवाते हैं। बस हमें विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के आत्मिक भोजन को हमेशा खाते रहना चाहिए। बहुत जरूरी है वो आत्मिक भोजन जो बाइबल है। अपने आप को डेली मिरर में देखना चाहिए बाइबल के। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और फिर कभी मिलते हैं। जय मसीह। टेस्टिमनी ऐसी है कि जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, कुछ डायर नीड नहीं थी, बट खुदा हमें ढूंढने आया, खुदा हमारे पास आया। एंड एट अदर टाइम्स लाइक मेरे हस्बैंड की जो टेस्टिमनी है, उनको बहुत जरूरत थी और खुदा को वो ढूंढते हुए आ गए। दिस इज सो ब्यूटिफुल इन हिज किंगडम कि खुदा अद्भुत तरीके से, बहुत ही पर्सनल तरीके से काम करता है, हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजमेंट कि क्योंकि हम बदल गए हैं, उसने हमें छू लिया है, जिंदगी बदल गई है। दैट्स नॉट द एंड, वी गॉट टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना है। और ये एक अभी ऐसा टाइम आपने हमें रिमाइंड कराया खुशी जी कि दिस इज टाइम टू लुक बैक, रिफ्लेक्ट करें एक बार हम सब, मैं आप सब लोग, कि जब हमें खुदा ने छुआ था पहली बार, जब हमने पहली बार खुदा को जाना था, जो हमारा पहला प्यार था, कहीं वो कम तो नहीं हो गया, वो जो रोशनी थी वो कभी धीमी तो नहीं पड़ गई। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट आवर लाइफ्स, टू रिफ्लेक्ट, टू पॉन्डर, टू पॉज एंड मेक श्योर वी आर ऑन द राइट ट्रैक। स्टैग्नेंट नहीं हमें होना, झुर्रियां हमारी सोल को झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। सो ब्यूटिफुली शी एक्सप्लेन दैट, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। वी शुड कीप, वैसे जैसे बिस्तर बिना उसके झुर्रियों के होता है, दैट इज द वे आवर लाइफ शुड बी, फ्री फ्लोइंग, नो रिंकल्स। हमारी सोल में ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपको खुदा बहुत बरकत दे और हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको बहुत इस्तेमाल करे इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, इन योर फैमिली लाइफ, और आप खुदा का नाम बहुत रोशन करो। सारा जलाल, सारी महिमा, सारा कुछ जो प्रभु को जाता है, क्योंकि हम सिर्फ उसके दास हैं, उसके सेवक हैं, उसके नौकर हैं। टू हिम, to him, to Christ alone and alone be the glory, in Jesus name. Can you pray for her and her husband and her child? We want कि God will open her the door for her, ऐसे दरवाजे खोले कि all the producers they will come at her door and knock. खुशी, we need you in our movie. Can you pray? खुदा बाप, हाउ ब्यूटीफुल, वी डोंट हैव टू, हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार आगे बस अब खुदा मेरे पास नहीं आ सकते। आप ऐसे कभी नहीं कहते, आपके कान हमेशा हमारी तरफ लगे रहते हैं। खुदा जी, आज जो हमने टेस्टिमनी सुनी है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने खुशी और उनके परिवार को छुआ है। प्रभु जी, मैं खुशी को, उनके हस्बैंड को, उनकी बच्ची को और उनके फैमिली को प्रभु आपके चरणों में लाती हूँ। हम तेरे बच्चे हैं, हम खास लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं मेरे खुदावन। We are peculiar people, we are chosen generation, oh Lord. तेरे खास लोग हैं हम खुदावन, and we pray for खुशी and her family, Lord God. सबसे पहले मैं दुआ मांगती हूँ खुदा बाप कि इसको स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्ग इनको बनाना खुदा बाप, ताकि ये तेरे वचनों में, तेरे प्यार में, तेरी फेलोशिप में बढ़ते जाए। और खुदा बाप उसके साथ साथ जब ये तुझे चाहेंगे, तेरे लिए प्यासे रहेंगे खुदा बाप, तेरा वचन भजन संहिता में कहता है, बिकॉज ही लव्ड मी आई विल ब्लेस हिम। ये आशीष मैं आज खुशी और उनके परिवार पे बोलती हूँ कि खुशी आपको बेहद इंतहा मोहब्बत करे खुदा बाप, और आप ये कहकर कि क्योंकि खुशी और उसका परिवार मुझे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है, मैं ये सब अनगिनत आशीषें इनके जीवन में देता हूँ। वी स्पीक ब्लेसिंग्स, we speak spiritual blessings, oh Lord. Enlarge our territory, oh Lord God, of our spiritual growth. Enlarge their territory, oh Lord God, of their professional growth, oh Lord God. Enlarge their territory of beautiful relationships and reaching out to people, their territory of saving souls for the kingdom of God. इनकी फैमिली को आशीष दें, आपका जो बार बार वो पीस कह रही थी वो उन पे बना रहे खुदा बाप, and they will not have to run to look for work. Work will come run looking for them. खुदा बाप, क्योंकि वो तेरे बच्चे हैं, तेरा वचन कहता है, और तू जो कहता है प्रभु जी वो तू पूरा करता है, क्योंकि तू सच्चा और वचन को पूरा करने वाला, वादा पूरा करने वाला खुदा है।
इस परिवार के लिए धन्यवाद। इनका इस्तेमाल कर, इनको अपने पंखों तले छुपा के रक्षा करें इनकी प्रभु जी। हर पल इनके साथ हो मेरे खुदावन। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Thank you very much, my friends watching us. And my preaching, I'm going to preach next Sunday. And I'm going to share my testimony also a little bit. And Khushi, thank you. I pray that God bless you abundantly. And today onwards, God is going to open the door for you, and you'll be surprised, beta ji. And you will see the things is going to be changed for you. आपके लिए काफी चीजें बदल जाएंगी, ठीक है? और प्रभु आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। एंड आज हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लगता है कि मेरे जो कंप्यूटर की बैटरी सडनली पता नहीं कैसे लो होगी, बट इट्स ओके। एंड नेक्स्ट टाइम अगेन वी आर गोइंग टू इनवाइट खुशी और उनके हस्बैंड को उन टेस्टिमनी के लिए। डेफिनेट दे विल कम। लेट अस प्रे। हम फिनिश करते हैं इस मीटिंग को। मेरे पिता परमेश्वर, Father Lord, we love you, worship you, give you glory, honor and praise. Lord, I bless every person who is watching, Father God, or who is going to watch. I pray, Father God, उनको आशीषें दे, उनकी इच्छाओं को पूरी करे। और प्रभु जी, I pray कि कभी wrinkle नहीं पड़ने चाहिए, my Lord. Lord, I don't want any wrinkles in my life, my Lord. I want my skin is going to be really tight and when I enter in the heaven, Father. Thank you, Jesus. We love you, worship you. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। Thank you for listening and answering all our prayers. मांगते हैं यीशु के नाम से, Amen. Oh Lord, you would bless me indeed, enlarge my territory, keep me from the evil one, that I may not cause any pain to anyone. Thank you. प्रभु सबको आशीषें दे और आपको आगे बढ़ाए और उसकी महिमा हो आप सबके द्वारा, उसका पवित्र आत्मा आप सब लोगों के साथ रहे। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीषें देने जा रहा है। Just be ready. Amen. 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 Thank you. जय मसीह की।